हरे कृष्ण। सो हम लोग चर्चा कर रहे थे आदि खंड चैप्टर 7। तो श्री विश्वम्भर भगवान जब गए और इस बार से इस तरह से रिक्वेस्ट किए, भोजन आय से भाई डाकय जननी अग्रज वसन धरि चलाया अपनी। तो माय डियर ब्रदर, प्लीज कम टू ईट, मदर इज कॉलिंग यू। विश्वम्भर देन caught hold of his brother's धोती and followed him home। तो भाई के पास गया और बोले कि ये मेरे प्रिय भ्राताश्री, चलिए, खाने का समय हो गया है, माता बुला रही है। और ऐसा बोल करके विश्वम्बर अपने बड़े भाई का धोती पकड़ के और वो खींच के लेके जाते हैं। देखी से मोहन रूपा सर्वभक्त गणा स्थगित हैया सब करे निरीक्षण समाधिर प्राय हैया छे भक्त गणे कृष्णेर कथन कारो ना आय से वदान। प्रभु देखी भक्त मोहा स्वभावे हया बिना अनुभव दासेर चित्त लाय। तो हम लोग इस श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। विश्वम्बर विश्व रूप का धोती पकड़ के खींच के लेके जा रहे हैं। और देखी से मोहन रूप, ऐसा सुंदर मोहित करने वाला रूप का दर्शन करके सब भक्त लोग पूरी तरीके से स्तब्ध हो गए। और एक जो है निरीक्षण करने में लग गए। और समाधि प्राय है आज, दे ऑलमोस्ट वेंट इनटू समाधि, कंप्लीट ट्रांस, पूर्ण रूप से समाधि में लगभग चले गए। और कृष्ण कथा जो कर रहे थे चर्चा, वो उनके मुख से अभी निकल नहीं रहा है। सो डिवोटीज आर बाय नेचर ओवरवेल्म्ड ऑन सीइंग देयर लॉर्ड। भगवान के भक्त स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति बड़े आकर्षित होते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं। भले ही भगवान को अगर ना भी पहचाने, तब भी अगर भगवान के सामने आते हैं तो उनके रूप गुण लीलाओं को देख करके भक्त प्रभावित हो जाते हैं। तो ये एक स्वाभाविक स्थिति, भगवान के प्रति आकर्षण होना, ये एक स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन बद्धावस्था में ये जो स्वाभाविक आकर्षण होता है भगवान के प्रति, ये ढक जाता है और भौतिक रूप से भौतिक वस्तु भौतिक व्यक्तियों के प्रति प्राप्त होता है। लेकिन जब कोई भक्ति मार्ग में आता है तो पहले कनिष्ठ भागवत होता है, मध्यम या महाभागवत के अंडर में रह करके जो है उनके मार्गदर्शन में भगवान की भक्ति करता है, तो धीरे धीरे वो भी मध्यम अधिकारी भक्त या मध्यम भागवत या फिर महाभागवत बन जाता है। When one attains the level of Kanish Adhikar, he can understand that his spiritual master is situated as Madhyam Adhikari. So, the Mahabhagavatas have no other engagement than service to Lord Hari and his devotees. ये डिवीजन बताया गया है, इसका चर्चा कर रहे थे। In the eternal nature of the living entities, there is an eternal propensity called Hari Bhakti. As a foolish conditioned soul is attracted to material objects, a pure living entity situated in whose service his constitutional propensity is similarly attracted to the Lord. In the opinion of some unfortunate person, even devotional service, the eternal propensity of the living entities is a mundane, perverted, abominable, illusory propensity. Those who argue are the foolish persons who are expert in material consideration, cannot realize the pure form of devotional service, which is eternally full of knowledge and bliss, and which is the goal of the liberated, self-satisfied, swan-like personalities. Rather, they accept devotional service, which is the eternally perfect transcendental propensity of the living entities, as a mental concoction. Due to this misconception, ordinary people consider the eternal attraction of Sukadeva Goswami, the crest jewel of learned scholars, for Krishna as material illusion or moh. Keeping in mind the transcendental happiness derived from serving the Lord, the author at this juncture uses the word moha, illusion, for the understanding of ordinary people. It is natural for the eternal servants of Krishna to serve Krishna with love and ecstasy. In other words, the living entity in his constitutional position eternally worships Krishna as his natural propensity. The conditioned soul with the mood for enjoyment cannot realize Krishna's love in this material world, but Krishna, who attracts the self-satisfied souls, unknowingly attracts the hearts of his servants, who have renounced material enjoyment, whose consciousness awakened,
and who are knowers of the absolute truth. This is what is meant by Krishna attracting his servants who are under the shelter of Santaras. The servants who are under the shelter of Santaras, like the cows, sticks, horn, and flute of Braja, although not situated in Dasiras, unknowingly serve Krishna while externally appearing less intelligent. तो ये स्वाभाविक रूप से आकर्षण होता है जो भगवान के प्रति, वो बिल्कुल भी भौतिक या मोहग्रस्त स्थिति नहीं होती है। हालांकि कुछ मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान के प्रति भी जब कोई शुद्ध भाव से अट्रैक्ट होता है, तो मायावादी लोग स्पेशली उसको भी अ काइंड ऑफ इल्यूजन, मोह, एक मोह समझते हैं, या आसक्ति, भौतिक आसक्ति की जैसे समझते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। जीवात्मा अपने वास्तविक स्थिति में, इन इस इन इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपेंसिटी है भगवान के प्रति आकर्षित होने का। इसलिए हर जीवात्मा जो भगवान का दास होता है, तो अपने जो इस भौतिक आकर्षण से मुक्त है वास्तविक रूप में, तो भगवान के प्रति आसक्ति को महसूस कर सकता है। ये तात्पर्य में श्री भक्ति ठाकुर गोपाल लिख रहे हैं। प्रभुओं से आपन भक्त तेरा चित्त हटे, ये कथा बूझित अन्य जाने नाही पारे। ये रहस्य विदित कैले न भागवते, परीक्षित सुन लेना सुखदेव हईते। प्रसंगे सुना भाव व तेरा आख्यान, सुख परीक्षित तेरा संवाद अनुपान। So materialistic persons are unable to understand how the Lord steals the hearts of his devotees. भगवान किस प्रकार से अपने सुंदरता के माध्यम से, अपने गुणों, दिव्य गुणों के माध्यम से और दिव्य लीलाओं के माध्यम से कैसे अपने भक्तों के हृदय को चुरा लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, या भक्तों को मोहित कर देते हैं, ये भौतिकवादी व्यक्ति कभी नहीं समझ सकते। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई शुद्ध भक्त होता है, जो शुद्ध भक्ति भाव से भगवान के प्रति प्रेम का अनुभूति करता है, तो भौतिकवादी व्यक्ति उसको, उस प्रेम की जो अनुभूति होती है, जो दिव्य स्तर की होती है, कोई भौतिक उसमें कलमश नहीं होता है, तो उसको वो मटेरियल समझते हैं, भौतिक समझते हैं, या भौतिक जो भावनाएं होती हैं उससे कंपेयर करते हैं। ये भी उसी प्रकार का है, लेकिन वो कभी भी ये इसको दिव्यता को नहीं समझ सकते हैं, बिकॉज दे हैव नॉट डेवलप्ड डिवोशनल फीलिंग। So yet this mystery was disclosed by सुखदेव गोस्वामी to महाराज परीक्षित in the श्रीमद् भागवत। लेकिन फिर भी भागवतम में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को ये भक्तों का हृदय किस प्रकार से भगवान चुरा लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, और भक्त जो है कृष्ण के प्रेम में कैसे भाव विभोर हो जाते हैं, इसकी दिव्य स्थिति को डिस्क्लोज करते हैं, यानी वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत में। तब उसका कुछ वर्णन यहाँ पे प्रसंग पा करके वृंदावन दास ठाकुर करने वाले हैं। प्लीज हियर नाउ द मैचलेस डिस्कशन बिटवीन सुखदेव एंड परीक्षित फ्रॉम श्रीमद् भागवतम इन दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन में वर्णन कर रहे हैं। तो भागवतम के 10th कैंटो 14th चैप्टर 49 वर्स में बताया गया है कि किंग परीक्षित सेड, ओ ब्राह्मणा, हाउ कुड द cowherd woman have developed for Krishna, someone else's son, such unprecedented pure love they never felt even for their own children? Please explain this. तो 10th कैंटो में ये 14वां जो अध्याय है, जिसमें ब्रह्म विमोहन लीला हुई, ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के सखाओं को और बछड़ों को चोरी कर ले जाते हैं। तो उस वक्त भगवान कृष्ण ही अपना विस्तार करते हैं अनेकों सखाओं के रूप में, बछड़ों के रूप में। तब उनकी जो माएँ होती हैं, माताएं होती हैं, यानी उन बछड़ों की माताएं गैया, और उन सखाओं, कृष्ण के सखाओं की माताएं जो गोपियां हैं, तो वो अपने पुत्र से ज्यादा ऐसा प्रेम को अनुभव करती हैं। अपने पुत्र से ज्यादा कृष्ण के प्रति वो प्रेम जो अनुभव करती थी, वही उन पुत्रों के प्रति भी अब करने लग जाती है।
तो इसके बारे में परीक्षित महाराज फिर ये प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे वो कैसे इस प्रकार का अनप्रेसिडेंटेड यानी अतुलनीय प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इसको एक्सप्लेन करते हुए 7-8 श्लोकों में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो स्वाभाविक प्रेम की बात चल रही है, इसके बारे में सुखदेव यहाँ पे वृंदावन ठाकुर भागवत से प्रमाण देके प्रूफ कर रहे हैं। तात्पर्य में श्री भक्ति ठाकुर प्रभुपाद प्रूफ कर रहे हैं ये कि जैसे भगवान विश्वम्भर जब पहुंचे दिगंबर वेश में विश्व रूप को लेकर जाने के लिए, तो सारे वैष्णवगण न जानते हुए भी कि ये वही कृष्ण है, लेकिन कृष्ण के जैसे ही आकर्षण को फील कर रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है इसमें। स्वाभाविक रूप से ये प्रेम या आकर्षण फील होता है। तो ये जो स्वाभाविक आकर्षण है भगवान के प्रति, इसका वर्णन इस जो लीला के माध्यम से, भागवत के इस लीला के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को समझाते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी said, O king, for every created being, the dearmost thing is certainly his own self. तो ये लॉजिक के साथ इसको प्रमाणित करते हैं कि हे राजन, इस संसार में हर व्यक्ति के लिए विदाउट एनी डाउट हर व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? हर व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय उसका अपना खुद ही है। हिज ओन सेल्फ इज मोस्ट डियर। हर व्यक्ति को अपना खुद का सेल्फ बहुत प्रिय है। द डियरनेस ऑफ एवरीथिंग एल्स, चिल्ड्रन, वेल्थ एंड सो ऑन, इज ड्यू ओनली टू द डियरनेस ऑफ द सेल्फ। इसको थोड़ा गहराई से कोई विचार करेगा तो समझ पाएगा, अन्यथा नहीं समझ पाएगा। लेकिन ये फैक्ट है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भागवत में बोल रहे हैं, पूरा डीप गहराई से एनालिसिस करके बता रहे हैं। भले ही कोई कुछ भी बोलता रहे कि मुझे तो अपने भी जीवन की परवाह नहीं है, मुझे अपने परिवार वाले ही सर्वश्रेष्ठ है, वो वास्तव में वो वास्तविक सत्य नहीं। वो सत्य हो सकता है उस वक्त के लिए, लेकिन गहराई से जो विचार करेगा कि ऐसा क्यों है कि कोई अपने परिवार वालों से बहुत ज्यादा प्रेम करता आ सकता है, क्योंकि वो उसके परिवार वाले हैं और वो अपने आप को ज्यादा प्रेम करता है, इसलिए। सो द डियरनेस ऑफ एवरीथिंग एल्स, अन्य अन्य हर वस्तु के लिए, अपने बच्चों के लिए, संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए जो प्रेम होता है, प्रियता होती है, डियरनेस होती है, वो वो अपने खुद के प्रेम के कारण है। अपने आप को व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए इससे संबंधित जो भी वस्तु व्यक्ति होते हैं वो भी उसको प्रिय हो जाते हैं। तो कारण क्या है? सेल्फिश, यहाँ पे वही है, सेल्फिशनेस ही। अन्य कोई बच्चे होते हैं, उनको प्रति उतना प्रेम क्यों नहीं होता, उतने प्रिय क्यों नहीं होते? क्योंकि वो हमारे बच्चे नहीं है ना, सिंपल सी बात। लेकिन ये हमारे बच्चे हैं, इसलिए हमको इनके प्रति प्रिय, ये हमको प्रिय होंगे, प्रेम होगा। क्योंकि वास्तव में हर किसी को अपना वो खुद का जो सेल्फ है वो सबसे प्रिय होता है। लेकिन ये आगे सुनते जाइए, फिर आगे एनालिसिस करेंगे कि हम हर व्यक्ति अपने आप को प्रिय क्यों है। तो फॉर दिस रीजन, ओ बेस्ट ऑफ किंग्स, द एम्बॉडीड सोल इज सेल्फ सेंटर्ड। इसीलिए हर जीवात्मा, जो बद्ध जीवात्मा है, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश है, स्वार्थी है। He is more attached to his own body and self than to his so-called possessions like children, wealth and home. वास्तव में हर व्यक्ति खुद के प्रति ज्यादा आसक्त है, खुद के शरीर और आत्मा से ज्यादा आसक्त होता है, प्रिय होता है उसको, बल्कि अपने पोजेशंस यानी अपने बच्चों, धन संपत्ति, घर, जगह, इससे ज्यादा अपने आप को, अपने शरीर और अपने जीवन, अपने आत्मा से उसको प्रेम होता सकती होती है। So indeed, for persons who think the body is the self, or best of kings, uh, those things whose importance lies only in their relationship to the body are never as dear as the body itself. If a person comes to the stage of considering the body mine instead of me, he will certainly not consider the body as dear as his own self. After all, even as the body is growing old and useless, one's desire to continue living remains strong. Therefore, it is his own self that is most dear to every embodied living being, and it is simply for the satisfaction of this self
that the whole material creation of moving and non-moving entities exist. So कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप को ही सबसे ज्यादा प्रेम करता है। इसका प्रमाण यही है कि जब अपने आप देहात बुद्धि में आता है तो अपने आप को शरीर मानता है, तो इसलिए शरीर को हमेशा प्रेम करता है और शरीर को सही बना के रखना चाहता है। यहाँ तक कि जब बूढ़ा हो जाता है कोई या मरने की अवस्था हो जाती है तब भी उसके हृदय में वो तीव्र इच्छा रहती है कि वो ना मरे। ये क्यों है? क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझता है, इसलिए अपने आप से ज्यादा प्रेम करने के कारण जब अपने आप को मिस आइडेंटिफाई करता है शरीर से, तो शरीर को नष्ट होता हुआ नहीं देखना चाहता है। तो ये एक है प्रिंसिपल है कि इसीलिए हिज ओन सेल्फ इज मोस्ट डियर टू एवरी बॉडी लिविंग। हर जीवात्मा को अपना खुद का सेल्फ जो है वो सबसे ज्यादा प्रिय है। अब आगे वर्णन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हर किसी को अपना जो अपना सेल्फ है, हिज ओन सेल्फ इज व्हाई इज सो डियर। सो यू शुड नो कृष्णा टू बी द ओरिजिनल सोल ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, क्योंकि कृष्ण जो है वास्तविक आत्मा है, हर जीवात्मा के आत्मा है। इसीलिए क्योंकि कृष्ण के प्रति सबको प्रेम है, स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति प्रेम है, कृष्ण ही सबके स्वाभाविक रूप से सबके अत्यंत प्रिय है। इसीलिए कृष्ण का अंश आत्मा होने के कारण आत्मा किसी व्यक्ति को खुद की आत्मा सबसे प्रिय लगती है, क्योंकि वो कृष्ण का अंश है इसके कारण। So for the benefit of the whole universe, he has, out of his causeless mercy, appeared as an ordinary human being. He has done this by the strength of his internal potential. Those in this world who understand Lord Krishna as she is, see all things, whether stationary or moving, as manifest forms of the Supreme Personality of God. Such enlightened persons recognize no reality apart from the Supreme Lord Krishna. The original unmanifested form of material nature is the source of all material things, and the source of even that supreme material nature is the Supreme Personality of God in Krishna. What then could one ascertain to be separate from him? One should refer to these verses and their translation by the author Vrindavan Thakur in the following verses. So, ये एनालिसिस सुखदेव गोस्वामी भागवत में 14th चैप्टर 10th कैंटो 10वें स्कंद का 14वां अध्याय में इस प्रकार से 49 श्लोक से लेकर 57 श्लोक तक यह एनालिसिस किया है। और ये निष्कर्ष निकाला गया है भागवत में कि क्योंकि स्वाभाविक रूप से नेचुरली हर किसी को सबसे प्रिय भगवान कृष्ण है, और कृष्ण ही सारी जीवात्माओं की आत्मा है। सारी आत्मा की आत्मा कृष्ण है। जिस प्रकार से ये भौतिक शरीर है, तो इस भौतिक शरीर की हम आत्मा है, यानी आत्मा जो होती है, जब आत्मा स्थित होती है तब ये भौतिक शरीर कार्य कर सकता है। आत्मा नहीं है तो भौतिक शरीर पूरी तरह से खत्म। तो उसी प्रकार से हर जीवात्माओं की आत्मा भगवान कृष्ण है, इसलिए परम आत्मा बोला जाता है, उनको सुप्रीम सेल्फ बोला जाता है। और उनके कारण ही सारी जीवात्माएं जो है प्रेम करती हैं इस संसार में। उनको भूल जाने के कारण अपने शरीर को, अपने आप को शरीर समझने के कारण शरीर को करते हैं, लेकिन वास्तव में वो ही परम आत्मा से प्रेम होता है जो जिनके ऊपर सब निर्भर है। और उनका अंश जीवात्मा होने के कारण वही प्रेम इस जीवात्मा अंश के रूप में भी प्रकट होता है। जब परमात्मा है भगवान को भूल जाता है और अपने आप को इस अंश से जो आत्मा होती है इसको शरीर समझने के कारण फिर फाइनली शरीर सबको डियर हो जाता है। और इस शरीर से जो भी फिर बच्चे होते हैं आते हैं, ये शरीर से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं, जो वस्तु होता है, जो संसार होता है, घर होता है, वो भी सब डियर बन जाता है। तो ये है फिलॉसफी। क्यों इस संसार में किसी व्यक्ति के प्रति हम आसक्ति या प्रेम को अनुभव करते हैं, वास्तव में ओरिजिनल ये कृष्ण के प्रति है, इसलिए संसार में अलग अलग जगह प्रकट होता है। ठीक है, इसका और एनालिसिस कल हम लोग करेंगे। यहाँ पे आगे वृंदावन दास ठाकुर इसको और डिटेल में वर्णन करने वाले। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।